خوش آمدید ساتھی کاروباری حضرات، مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو زندگیوں کو بدلنے اور قسمت بنانے والی ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے اور یہاں بتائے گئے مشوروں پر عمل کرنے کے خواہشمند ہیں، وہ اپنے کاروبار میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 5 عادات کی فہرست بنانے جا رہا ہوں جو دولت بنانے میں بہت مؤثر ہیں۔ وہ تقریباً ایک لائف ہیک ہے۔ پھر بھی 99 میں یہ عادات نہیں ہیں۔ کوئی کلچ، کوئی بورنگ ٹپس، ان میں سے کوئی بھی جلدی نہیں اٹھتا، یہ بے ترتیب کتابیں نہیں پڑھتا، لیکن حقیقی مشورہ جو کروڑ پتی اور ارب پتی اپنے بیٹوں اور اپنے قریبی دوستوں کو تجویز کریں گے۔ اب یہ آپ کو بعید از قیاس لگتا ہے، لیکن میں اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا اپنی عادات کو دیتا ہوں۔ آپ اس سے حیران ہوں گے، لیکن پچھلے سال میں نے اپنے ای کامرس کاروباروں میں مجموعی طور پر $2.3 ملین کمائے۔ اور جب میں نے واقعی اس کے بارے میں سوچا، مجھے یاد آیا کہ جب میں 15 سال کا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں کروڑ پتیوں کے طرز زندگی کو نقل کروں گا اور اچھی عادات کو اپنانے پر توجہ مرکوز کروں گا۔ آئیے صرف یہ کہتے ہیں کہ جوا ادا ہوا۔ تو مزید بات کیے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر ہونے کے لیے آپ کو کن عادات کی ضرورت ہے۔ تو پہلی عادت اپنے فون کو گرے اسکیل میں رکھنا ہے۔ پہلی عادت آپ کو ناکافی اور عجیب بھی لگے گی، لیکن مجھ پر بھروسہ کریں، یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ اس کو دیکھو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فون انسٹاگرام پر گرے اسکیل میں ہے، اور جب میں سکرول کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی رنگ نہیں ہے۔ میں اکثر مواقع پر اسے ایک قدم آگے بڑھانا اور اپنے فون کو ہوائی جہاز کے موڈ پر رکھنا پسند کرتا ہوں جب میں گہرا کام کر رہا ہوں، لیکن میں اکثر ایسا نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی اطلاعات میں سر فہرست رہنا پسند کرتا ہوں۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کا فون کتنا ناقابل یقین حد تک نشہ آور ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اس وقت تک نہیں کیا جب تک میں نے اپنا اسکرین ٹائم ٹریکر فون پر نہیں لگایا اور محسوس کیا کہ میں اپنے فون کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے 3 سے 4 گھنٹے ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے اس عادت کو بدلنا پڑا۔ تو گرے اسکیل موڈ کیسے مدد کرتا ہے؟ آپ شاید سوچ رہے ہیں، ہمارا دماغ نیاپن اور رنگوں کے لیے بہت پرکشش ہے۔ در حقیقت ہمارا دماغ اسی طرح کام کرتا ہے۔ وہ فطرت کے لیے بنائے گئے ہیں اور روشن چیزوں اور چمکدار چیزوں کے لیے ناقابل یقین حد تک جواب دہ ہیں۔ لہذا پرانے وقتوں میں چمکدار رنگ واقعی مثبت تھے کیونکہ اس سے آپ کو ان چیزوں کی شناخت میں مدد ملتی تھی جن کی آپ کو در حقیقت ضرورت تھی۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی منفی چیز ہے کیونکہ یہ آپ کو چمکدار خلفشار دے رہی ہے۔ گرے اسکیل موڈ فون کو استعمال کرنے کے لیے غیر کشش بنا دیتا ہے۔ انسٹاگرام ایک سرمئی گڑبڑ بن جاتا ہے، ویب آرٹیکل کمزور ہو جاتے ہیں اور گیمز اپنی تمام بصری کشش کھو دیتے ہیں۔ آپ کے فون پر موجود تصاویر تاریخ کی کتاب کی طرح لگتی ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ موڈ نے میری سکرین کے استعمال کو روزانہ صرف 20 منٹ تک کم کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے فون پر کم اور کام کرنے میں زیادہ وقت گزار رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ، میں نے محسوس کیا کہ میں ہر روز پہلے سونے جا رہا تھا کیونکہ میں اپنے بستر پر نہیں لیٹا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے اسکرول کر رہا تھا۔ میں گھنٹے بچا رہا تھا اور 1 ٹن کام کر رہا تھا۔ اور اب تک میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ میں اپنے فون کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کچھ کھو رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ موڈ میں بھی جانے کی سفارش کروں گا۔ تو یہ مجھے عادت نمبر 2 کی طرف لے جاتا ہے، جرنلنگ اور ایک موڑ کے ساتھ نوٹ لینا۔ ہر کوئی جرنلنگ کی سفارش کرتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں خود ہی جرنلنگ زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ لہذا جرنل کا ایک بہتر طریقہ ہے جس نے مجھے اپنی کامیابی کی طرف راغب کیا، اور میں اسے ابھی آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے، آپ کو ہر روز جرنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری رائے میں، ہر روز اپنے آپ کو جریدے پر مجبور کرنا
एक फजूल सरगर्मी है। आप मायूसी महसूस करेंगे और छोड़ देंगे। दुवम, रोज़ाना के वाक़यात को नोट न करें क्योंकि आपके रोज़मर्रा के वाक़यात दौलत की तामीर के लिए काफ़ी गैर अहम हैं। कोई भी हकीकत में माजी की परवाह नहीं करता और न ही आपको होना चाहिए। इसके बजाय जर्नल जब इल्हाम और बसीरत मारे, जब आप ज़हनी रुकावट को उबूर करते हैं, एक नया नुक्ता नज़र हासिल करते हैं। आप इस वक्त जर्नल करना चाहते हैं। आप उसे नोट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको आपके ख़यालात के लिए एक फॉर्म देगा और आपको वाज़े तौर पर सोचने में मदद मिलेगी। इससे भी बढ़कर आप अपनी सोच को तैयार होते और वक्त के साथ तब्दील होते देख सकेंगे। जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ऐसी बसरतें नज़र आएंगी जिनका आपने पहले कभी एहसास नहीं किया था। दुवम, अच्छे मशवरे और मालूमात को नोट करें। आपने शायद लातादाद किताबें पढ़ी होंगी, लामुत्तनाही पॉडकास्ट सुने होंगे और मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि बेहतरीन हिकमत अमली मुसलसल नई मालूमात हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको पहले ही मौसूल होने वाले बेहतरीन मशवरे को दोबारा पढ़ना है? लिहाजा नीवाल रविकांत ने कहा कि ये सबसे बेहतर है नई किताबों को दोबारा पढ़ने की सरगर्मी से कोशिश करने के बजाय बार बार बेहतरीन 100 किताबें पढ़ें। आइए ईमानदार बने, हमारी यादें काफ़ी नाकाबिल एतबार हो सकती हैं। हम एक हफ्ते के अंदर अच्छी नसीहत भूल जाते हैं। जरीदा रखने और नोट लेने से आप हमेशा मुफीद मालूमात के ऊपर रह सकते हैं। अब मैंने अपने कारोबार में जो भी अहम पेशरफ्त हासिल की है वो कई महीनों से मेरे ख़यालात को लिखने के बाद आई है। लिहाजा मेरे बेहतरीन ख़यालात महीनों की नोटबंदी और तजुर्बात के ज़रिए तश्कील पाए। अब मेरे जरीदे के बग़ैर मुझे वो लाइट बल्ब लम्हात कभी नहीं मिलते। इससे मेरा कारोबार $1 मिलियन तक बढ़ गया। लिहाजा आदत नंबर 2 के लिए जर्नल करें और अच्छे नोट लें। अब चलते हैं आदत नंबर 3 की तरफ। सबसे बात करें। यहाँ क्यों है? हर वक्त अजनबियों से बात करें। क्या आप कहीं लाइन में हैं? एक कॉफ़ी शॉप पर? क्या आप सड़क पर, किसी इमारत में, जिम में, किसी और जगह पर हैं जहां दूसरे लोग मौजूद हैं और काम में मसरूफ नहीं हैं? अब सिर्फ उनके साथ बातचीत। आप एक नया बेहतरीन दोस्त बनाने या तारीख हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ 30 से 60 सेकंड तक लोगों, मर्दों और औरतों दोनों के साथ सबसे ऊपर चीट कर रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर कहीं नहीं जाएंगे और इसमें से कुछ इंतहाई अजीब हो सकते हैं। लेकिन शायद आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जिसे आप अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं और बाद में राब्ता कर सकते हैं। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आपको उन 60 सेकंड में कीमती मशवरे देगा या आपको कोई ऐसी टिप देगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तुम कभी नहीं जानते। अब समाजी कारी इससे भी आगे है। दौलत की आला सतहों पर अब ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि आप किसको जानते हैं। बड़े नेटवर्क वाले लड़के इसी कारोबार में इस लड़के के मुकाबले में आगे बढ़ते हैं जो खुद को घर में बंद कर लेता है। वो सोचता है कि वो सिर्फ मेहनत से ही हासिल कर सकता है। अब ये ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग को ज़्यादा पेचीदा ना करें। तमाम नेटवर्किंग है, लोगों से बात कर रही है, और लोग कारोबार के किसी भी दायरे में आपका सबसे बड़ा असासा है। अजनबियों से बात करने की आदत बनाएं। अब जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो याद रखने वाली सबसे अहम चीज़ों में से एक ये है कि आपको हैरत अंगेज़ गुफ्तगू में माहिर होने की ज़रूरत नहीं है या आपके पास तमाम जवाबात हैं। सिर्फ दूसरे शख्स में हकीकी दिलचस्पी ज़ाहिर करना और सोचे समझे सवालात करने से राब्ता कायम करने में बहुत मदद मिलेगी। लिहाजा अगर आप ये ज़्यादा कसरत से करते हैं तो आप उसके लिए महारत पैदा करेंगे। जल्द ही आपको बातचीत शुरू करना और इवेंट्स में नए लोगों से बात करना आसान हो जाएगा। मुझ पर यकीन करो, ये इसके काबिल हो जाएगा। तो आदत नंबर 4, अपने शेड्यूल की मंसूबाबंदी करें,
लेकिन एक काम मुख्तलिफ तरीके से करें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आप अपने आप को जवाबदेह रखते हैं और वक्त ज़ाय न करें, एक शेड्यूल नंबर एक चीज़ है। आम राय के बरक्स, बहुत सा वक्त ताख़ीर से नहीं बल्कि फ़ैसला साजी में ज़ाय होता है। मैं सोचने और फ़ैसला करने में बहुत वक्त ज़ाय करता हूं कि आगे क्या करना है। इसलिए एक शेड्यूल बहुत अहम है। अब ज़्यादातर लोग तयशुदा कैलेंडर को देखने से नफ़रत करते हैं। ये ठीक है क्योंकि मैं भी करता हूं। मेरे पास हद से ज़्यादा मातोएकानकशी निज़ाम अलोकात का कोई एहतराम नहीं है जो ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। मैंने कभी कोई सबूत नहीं देखा कि ये निज़ाम अलोकात हकीकत में काम करते हैं। जो लोग उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं वो मायूस हो जाते हैं और आखिर में ज़्यादा मुतासिर कुन और लापरवाह हो जाते हैं। इंसान रोबोट नहीं है। अपने वक्त को मशीन की तरह तय करना कुछ भी करने का एक अच्छा तरीका नहीं है। इंतहाई तंग और एन मुताबिक जाने के बजाय अपने दिन में कुछ बिलाक्स को काम के औकात के तौर पर मुख्तस करें और बाकी को खाली रखें। फिर ये करें। ये लिखने के बजाय कि अब क्या करेंगे, आइए कहते हैं सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक अहदाफ मुकर्रर करें, इंतहाई मखसूस अहदाफ जैसे मैं अगले 3 दिनों तक 50 ईमेल भेजूंगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये कब करेंगे और कैसे। सबसे अहम बात यह है कि आप उसे काम के किसी भी औकात में मुकम्मल कर लें जो आपने पहले ही दर्ज कर रखा है। अगर आप उसे जल्दी कर लेते हैं तो एक वक्फा लें। अगर आपको काम करने का एहसास नहीं है तो कुछ सरगर्मियां करें और काम करने के लिए अपने मुफ्त बिलाक्स में से एक का इस्तेमाल करें। आपको दिन के हर हिस्से में काम करने का एहसास नहीं होगा और ये ठीक है। बेहतर है कि इस वक्त को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करें, दिन के बाद काम करने के लिए। अहम बात यह है कि आप उसे हर कीमत पर हासिल करें। आप ये कैसे करते हैं ये अहम नहीं है। इस तरह आप ज़बरदस्ती आउटपुट के बजाय अपने काम को कुदरती और नामियाती रख सकते हैं। काम के शेड्यूल को बरकरार रखने और दिन के अहदाफ कामों को लिखने की आदत डालें। फिर उन कामों पर अमल करें। आप अपने काम करने वाले बिलाक्स और मुफ्त बिलाक्स के साथ लचकदार हो सकते हैं। अपने मुफ्त बलाक में हकीकत में कुछ ठोस करना याद रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके वक्त ज़ाय कर रहे हैं तो शायद आपको आदत नंबर 1 को दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये हमें इस वीडियो में आखिरी आदत तक ले आता है। ये आपके पैसे की सरमायाकारी के बारे में है। आपके पैसे को रोकना आपके तमाम पैसे खोने का नंबर 1 तरीका है। इसे काफ़ी देर तक रोके रखें। इफ़रात ज़र इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपके पास अपनी असल कीमत का एक हिस्सा बाकी रह गया है। ये मौजूदा माशी निज़ाम की हकीकत है जिसमें हम हैं। अब मैं आपको बता सकता हूं कि हकीकी दौलत सरमायाकारी के ज़रिए बनती है। सरमायाकारी के लिए पेचीदा वक्त लगने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना अहम है कि अब ज़िंदगी में इब्तिदाई सरमायाकारी करना शुरू कर दें क्योंकि वक्त सबसे ज़्यादा इनामात हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। अपने पैसे को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे बचत अकाउंट में रखें। अब कंपाउंड सूद की ताकत आपके मुनाफा को दोबारा सरमायाकारी करके और आपके पैसे को बढ़ने देकर हैरत अंगेज काम कर सकती है। आप एक बड़ा मालियाती महफूज बना सकते हैं जो बढ़ता रहेगा यहाँ तक कि जब आप फ़आल तौर पर ताउन नहीं कर रहे हों। ताहम अगर आप अपनी सरमायाकारी में ज़्यादा ज़हीन बनना चाहते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को मुतनव्वे बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ असासाजात की क्लासों जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना, अपने ख़तरे को फैलाने और अपने मुनाफा को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। ताहम सरमायाकारी पेचीदा हो सकती है। ये ज़रूरी है कि अब सबसे आसान इख्तियारात के साथ शुरू करें और बाद में पेचीदा इख्तियारात पर जाएं। आप म्यूचुअल फंड्स से शुरू कर सकते हैं और फिर इंडेक्स फंड्स और फिर रियल एस्टेट पर जा सकते हैं। ये वो शोबे हैं जो मुस्तहकम मुनाफा फराहम करते हैं और निस्बतन कम खतरा रखते हैं। अब
یہ وہ جگہ ہے جہاں جنرل زیڈ پرجوش ہو جاتا ہے۔ کرپٹو بھی ایک اور طاقتور اثاثہ ہے اور میں ذاتی طور پر کچھ کرپٹو بھی رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مستقبل میں شوٹ کرنے والا ہے۔ تم بس کبھی نہیں جانتے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جہاں آپ کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اپنے پیسے کو ادھر ادھر پڑنے دینے سے بہتر ہے یا بدتر اسے برباد کرنا۔ ایک بار جب میں نے سرمایہ کاری کرنے اور سرمایہ کاری کی حکمت عملی سیکھنے کے لیے گھنٹے لگائے تو میری دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ میں سوتے وقت پیسہ کما رہا ہوں اور یہ اب تک کا سب سے طاقتور احساس ہے۔ سرمایہ کاری کو عادت بنانا ضروری ہے اور آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ آج سب کے لیے یہی ہے۔ 5 آزمائی ہوئی عادات جنہوں نے مجھے اور سینکڑوں دوسروں کو لاکھوں ڈالر بنا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب صحیح عزم اور عزم کا مظاہرہ کریں گے اور ان عادات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں گے۔ اب آخر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے۔ دولت ہر اس شخص کے لیے قابل حصول ہے جو گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہو۔ میں ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہوں جو ان کی زندگی کو بدلنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اپنے ویڈیو کا لطف اٹھایا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ روزانہ کی ان عادات کو آزمائیں گے اور 1 یا 2 ہفتوں کے بعد میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو پر واپس آتے ہوئے دیکھنا پسند کروں گا۔ اس پر کچھ تبصرے کریں کہ اس نے آپ کو اپنی ترقی میں کس طرح مدد کی ہے۔ آن لائن کاروبار